Hello, good afternoon, fourth years. Today we are going to start the etiology. We were in the multiple pregnancy. Multiple pregnancy क्या होता है वो हमने देख लिया था. Definition देख लिया है, its varieties देख लिए हैं, types देख लिए थे हम लोग. और आज we'll start with the etiology. What are the causes can make the multiple pregnancy? ऐसे क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जो can aggravate this multiple pregnancy. Okay, so let's start with this. Yeah, with the race depends on the varieties of races. Like Negroes जो होते हैं उनमें there is more chances to get the multiple pregnancy. The lowest in the Mongols and the normally in the among the all the Caucasians जो women होते हैं they all are in the intermediate conditions. And just make in mind that Negroes have the highest varieties of multiple pregnancy will be there in the Negroes. And next is hereditary. See, more transmitted through the maternal side. अगर mother herself is pregnant, मैं अभी पैटर्नल की बात नहीं कर रही हूँ, पेरेंट्स वाले सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ. अगर मदर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मी माई सेल्फ, इफ़ आई एम हैविंग दी वी ऑलरेडी हैव ट्विंस डॉटर, मीन्स अगर मैं और मेरी जो सिस्टर है हम दोनों ट्विंस हुए होते तो डेफिनेटली देर इज़ अ चांस टू गेट the multiple pregnancy to me or my sister also. Okay, or agar my husband is not twins, तो देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ पैटर्नल थिंग्स. और फादर का जो इफेक्ट होता है कंपेरेटिवली मदर्स ज़्यादा अफेक्ट करती हैं. ओके, एडवांसिंग एज ऑफ मदर, दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉजेस इन एवरी एबनॉर्मलिटीज़, एवरी हाई रिस्क. मैंने हमेशा से बताया है आपको. एडवांस एज ऑफ मदर मोर देन 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज. हर कॉम्प्लिकेशंस, हर डिजीज़ के जब लिखेंगे आप ईटियोलॉजी तो दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन कॉजेज़ जो आप हमेशा लगा सकते हो. अगेन आई एम टेलिंग दिस. ओके, influence on of parity also. And how parity? If the mother is having more than 4 life, or more than have 5 baby already have, and again she get pregnancy or conceived again in the 5th gravida. अगर फिफ्थ ग्रेविडा में है वो, फिर से 5th टाइम प्रेग्नेंट हुई, ऑलरेडी शी हैव 4 or 5 बेबी अर्लियर, and now means she's 5 para. Okay, the parity also somewhere influence that women also can have the multiple pregnancy. Okay, now iatrogenics means if the mother is having taking any ovulative drugs, like mother is not having she was trying for the baby but she was not conceiving, so on that time also mother take the ovulation medications. Ovulation including drugs may produce multiple fetuses. कई बार क्या होता है, ऐसे ड्रग्स मल्टीपल fetuses भी हो जाता है in some of the cases. तो this is also a iatrogenic causes is also there which can cause the multiple pregnancy. Okay, so this was all about the etiology. These are the some important terminologies that you can read later. So let's see the lie and presentation. You just imagine yourself कि कैसे कैसे lie, कैसे कैसे because there are 2 baby यार, there are more than 2, more than 3, more than 4 भी हो सकते हैं. तो कैसा क्या होगा, just imagine on your mind कि बेबी ऐसे सिचुएटेड होगा, ऐसे होगा, या ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो कैसे होगा, मतलब व्हाट इज़ ऑन योर माइंड कि कैसा प्रेजेंटेशन होगा, कैसा लाई होगा. नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाई इन प्रेजेंटेशन. मैं बोल तो रही हूँ भारी कि जैसे लाई क्या होगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को. लाई, प्रेजेंटेशन, मैंने हर चीज़ पढ़ा चुकी हूँ. प्रेजेंटेशन अगेन आई एम रिपीटिंग. प्रेजेंटेशन मीन्स जो भी पार्ट वेजाइना सर्विक्स में सबसे पहले दिख रहा है दैट वी कॉल द प्रेजेंटिंग पार्ट और प्रेजेंटेशन. ओके, अब जैसे इसमें ये दोनों का क्या प्रेजेंटिंग पार्ट और प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है दोनों का. ठीक है, अब इसमें लाई कैसा है इन लोगों का, लॉन्गिट्यूडनल लाई है.
ठीक है। इसमें भी इन दोनों का लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई है, बट प्रेजेंटेशन क्या है, एक का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है और एक का ब्रिज प्रेजेंटेशन है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड द लाई एंड प्रेजेंटेशन। सो लेट्स सी दी लाई एंड प्रेजेंटेशन कैसे क्या क्या होते हैं। Yeah. The commonest lie of the fetus is longitudinal. In the 90% of cases, the lie is longitudinal. Okay, but the malpresentations are quite common. A malpresentations means longitudinal lie is common. Okay, longitudinal lie है is common, but presentation may be malpresentation. मतलब vertex presentation के अलावा भी कोई और presentation होता है. Vertex presentation is only called the normal presentation. Else any type of presentation like face presentation, like bridge presentation, so these all are malpresentation. Okay, I'll teach you one day malpresentation also कि क्या क्या malpresentations होते हैं. तो अगर vertex presentation के अलावा vertex कौन सा पार्ट होता है, उस पार्ट के अलावा अगर कोई भी presentation होता है तो that we call the malpresentation. Okay, तो माल प्रेजेंटेशन कॉमन हो जाता है, बट लॉन्गिट्यूडनल लाई जो होता है दैट इज़ वेरी कॉमनेस्ट. ठीक है, और माल प्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में माल प्रेजेंटेशन दिखे, बट लॉन्गिट्यूडनल लाई इज़ वेरी कॉमन. द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटसेस आर, अब कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में फीटसेस दिखते हैं, जैसे कभी कभार क्या होता है बोथ दी फीटसेस आर इन दी वर्टेक्स, जैसे मैंने इसमें बताया था. सी बोथ द फीटसेस आर इन दी बोथ द फीटसेस आर इन दी वर्टेक्स. दिख रहा है दोनों वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है और दोनों लॉन्गिट्यूडनल लाई है. ठीक है, बोथ दी सॉरी या फर्स्ट वर्टेक्स एंड सेकेंड ब्रिज. अब फर्स्ट वर्टेक्स है फर्स्ट वाला और सेकेंड इज ब्रिज. अब मैंने ये जो इमेज दिखाया था आपने, यू आर एबल टू सी इन दिस इमेज, दिस वन इज वर्टेक्स एंड दिस इज ब्रिज. तो दिस इज कॉल्ड दी वन इज द वर्टेक्स एंड वन इज द ब्रिज प्रेजेंटेशन. ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट ब्रिज एंड सेकेंड वर्टेक्स. ये भी मिलता है, बोथ ब्रिज भी होते हैं, बोथ दी फीटसेस आर इन द ब्रिज. फर्स्ट वर्टेक्स एंड सेकेंड ट्रांसफर्स ऐसा भी होता है. लेट्स सी द इमेज. सी इन दिस इमेज देयर इज क्लियरली one is in the vertex presentation, vertex और longitudinal lie, and another is in the transverse lie. Okay, तो इस टाइप के भी दिखते हैं. and this is the both the fetuses are in the transverse lie. Okay, तो ऐसे भी cases दिखते हैं. This pie chart is showing you the कंडीशंस की 8% आर अदर्स. ब्रिज जो होते हैं दोनों ब्रिज हैं तो दिस 5% केसेस इज देयर. सिफेलिक ट्रांसफर्स जो होते हैं जैसे दिस इज सिफेलिक एंड ट्रांसफर्स, दिस 80% कैन ऑकर इन दी फीटसेस. सिफेलिक एंड ब्रिज, see this is cephalic and bridge, this is 27% of the fetuses have the cephalic and bridge. Rest of the vertex presentation for both the longitudinal lie, both the fetus is 42%. Okay, so these are the some lie and presentation of the fetuses inside the uterus in the multiple pregnancy. So next is diagnosis. Next is diagnosis. How you will diagnose that patient. Let me share the slide.